Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. It's Dr. Shadab Shokar. Today we will discuss the selfing and crossing techniques in maize. And you can see maize in my background, and that's a maize plant. And you can see the male and female portion that we will discuss later. And before starting any selfing and crossing procedure, you have to start with your equipments. What equipments you are needed? That is the first of all you have your scissor, pointed scissor, and with that along with pointed forceps you have pointed forceps, pointed needle, and scissor. Pair of scissor you have pair of scissor, and butter paper bags, and after that you should have methylated spirit. Why we need the methylated spirit? Because when we start first plant, after when we will go to the second plant, we have to sterilize our instrument, because to avoid the chance of contamination. Because when we will do the emasculation of one plant with this scissor, this will be contaminated by the pollen, and we have to wash with the methylated spirit. And at last we have the tag and lead pencil, and we use the tag with the lead pencil because it is after every day. If we use a ballpoint, we don't have to use this type of ballpoint. We have to use the lead pencil with writing the tag. That is more affectionate, and that is more retaining in every type of environment. If we use this lead ballpoint, this will be the color will be the fade day by day, and you will not be able to recognize what you have written on your label. And then wheat is a cross pollinated crop. And why cross pollinated crop? And wheat is a monoecious plant. Why monoecious? Because male and female flower on the same plant, but on the different plant, different position on the same plant. You can see this is the single plant of maize, and upper side you can see this is the tassel, which is a male part, and this is the female part, which is, you can say, cob, or you can say also there is a chilli. The cob is the female part, and as it is a cross pollinated crop, what we have to do, we have for selfing. First we will study the selfing, how we do the selfing. For selfing we will do the, what we will do, you can see this is also the tassel male part. We will cover this male part in the evening, and we will make it covering. That's the male part. And second one, we have to cover the female. That's the female of the same plant. You can see this is a small cob. We have covered these two portions, and next day morning we will come again in the field and remove the respective bags. That's we have write the female, and this one we have write the male in the evening today. This is for the emasculation in the selfing, for the selfing. That's not emasculation, this is just for the selfing. Next day morning you come, you remove the respective bag. You can see the pollen are shedding. You will just take the petri dish and dust the pollen into the petri dish, and remove that bag from female and take it somewhere else. And then with the help of camel hair brush, right now we don't have that brush due to the shortage of time, we have to manage. What we say, we will do the dusting of pollen on the female cob. This is procedure for the selfing. Then we can do, what we will do, we will put the respective bag and cover that cob. Why we cover this cob? Because to avoid the chance of contamination. Only the same plant have the, in the selfing we have to cross the same plant with the respective bag. इसी तरह मैं आपको सिंपल वर्ड में अगर बताऊं तो जो एक ही प्लांट है, उसी का जो टेसल है, उसी से पोलन लेके हमने उसकी फीमेल पार्ट को हमने क्या करना है, पोलिनेट करना है। इन सिंपल वर्ड कि एक ही प्लांट जो है, एक ही पौधे से हमने उसका मेल पार्ट जो उसके एंथर्स है वो कलेक्ट किए। ये देखें भी आपको एंथर्स भी नज़र आ रहे होंगे, शेडिंग होती है। ये एंथर्स जो अर्ली इन द मॉर्निंग, thousands of anthers burst from the single
single anther, number of pollen grain they are shed from the single anther। ये होगी हमारे पास सेल्फिंग। उसके बाद हमने यहाँ पे लेबल लगाना है। राइट नो वी डोंट हैव एनी लेबल एंड व्हाट वी हैव राइट ऑन द लेबल। लेबल के ऊपर हमने 4 चीज़ें लिखनी होती हैं, वो हम क्रॉसिंग के बाद भी आपको बता देता हूँ। सेल्फिंग अगर हमने करवानी है, नेम ऑफ क्रॉस वो हम नहीं लिखेंगे क्योंकि ये सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप है। डेट ऑफ एमेस्कुलेशन वो भी नहीं लिखेंगे क्योंकि ये सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप है। हम इसको डेट ऑफ कवरिंग लिखेंगे कि डेट जिसको हमने इसको बैक किया है और जब हमने इसको पोलिनेट किया है। देन 4th नंबर पे हम इस पर साइन करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास एक सिंपल सा प्रोसीजर होगा कि जो हमने सेल्फिंग करवाई कॉर्न की, जो मेज़ है इसकी सेल्फिंग। क्योंकि मेज़ क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप है, इसका जो पोलन है वो हवा से बहुत ज़्यादा दूर तक ट्रैवल करता है। अबाउट 1 किलोमीटर जो है ना वो मेज़ का पोलन ट्रैवल करता है थ्रू एयर। कि यहाँ पे मेज़ लगी है 1 किलोमीटर रेडियस के अंदर, ऊपर कहीं पे भी मेज़ लगी है तो जो मेज़ का पोलन है सीरियल के अंदर, इसकी एबिलिटी है कि यहाँ से हवा के थ्रू डिसेमिनेट होकर वहाँ पर दूसरी पोलन जो मेज़ उसका जो कॉब है, उसकी जो छल्ली है, इसको भी पोलिनेट कर सकते हैं, ठीक है ना। अभी अगर आपको मैं दिखाता हूँ ये जो इधर ये दिखाएं तो ये वाली जो कॉब है, ये ज़रा जूम करके दिखाएं। ये जो कॉब है ना इसके ऊपर ये सिल्क मर्ज हो रहे हैं। इसका कलर आपको बता रहा है कि ये अभी इसकी पोलिनेशन नहीं हुई। तो अगर इसकी पोलिनेशन करवानी है तो फिर हम क्या करते हैं, हम इसको 1 सेंटीमीटर तक रहने देते हैं और बाकी जो इसको ऊपर टिप्स होती हैं उनको हम कटिंग कर देते हैं। क्योंकि ज़्यादा जो होती है उनको हम कटिंग करवा देते हैं। ये देखिए अभी हमने उनकी क्या करवा दी, कटिंग करवा दी, ठीक है ना। अब ये अभी इसकी सेल्फिंग जो है वो पोलिनेशन नहीं हुई। पोलिनेशन से पहले इसका कलर डिफरेंट है और पोलिनेशन के बाद इसका कलर जो चेंज हो जाता है, आप देख सकते हैं। तो हमने वहाँ से पोलन लेके ऊपर वाला जो प्लांट है इसे पोलन लेके इसको पोलिनेट करवाना है। ये हमारी एक मेज़ की सेल्फिंग के अंदर आती हैं चीज़ें। तो अब हम आ जाते हैं क्रॉस पोलिनेशन के ऊपर। तो उसी तरह सेम हमने जो अर्ली मॉर्निंग के अंदर आके इवनिंग के अंदर सबसे पहले हमने इवनिंग के अंदर क्या करना है, जो हमारा टेसल है, डिज़ायर टेसल जो है उसको हमने बैक कर दिया एक प्लांट का जो है हमारे पास, और उसको हमने इस तरह से कवर कर देना होता है नीचे से ना। तो दूसरा प्लांट जो जिसकी जो हमने फीमेल लेनी है दूसरी वैरायटी का, उसकी फीमेल को हमें कवर कर देना है। उसके आपको दिखा देते हैं। ये हमने उसकी फीमेल को भी कवर कर दिया, ठीक है ना। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग के अंदर आके हमने क्या करना है, अर्ली इन दी मॉर्निंग हमने काम ये करना है। अर्ली मॉर्निंग के अंदर जो इसकी मेज़ है तकरीबन 10 से 11 बजे, वो आप लोगों को मैं इसकी स्लाइड्स भी शेयर कर दूंगा कि कौन सा इसका टाइम है, कितनी देर के लिए पोलन वाइबर रहता है। हमने क्या करना है, नेक्स्ट डे मॉर्निंग के अंदर आके जो टेसल है उसमें से उसको बैग जो उसको रिमूव करना है। टेसल यहाँ से पैट्री डिश के अंदर उसको कलेक्ट किया। टेसल से हमने जो एंथर्स कलेक्ट किए हैं, हमने सेम प्रोसीजर वही करना है जो हमने सेल्फ पोलिनेशन के अंदर किया था। लेकिन हमने अब क्या किया, उस सेल्फिंग के अंदर एक ही जीनोटाइप थी हमारे पास। अब क्रॉसिंग के अंदर ने क्या किया, दूसरा प्लांट जो है हमारा, उसके ऊपर जाके हमने क्या किया, उसकी वो रिस्पेक्टिव बैग हमने उसका रिमूव किया। दूसरा बैग रिमूव करके अगेन हमारे जो पोलन है उसके ऊपर हमने इसकी पोलन जो कैमल हेयर ब्रश है उससे हमने डस्टिंग करवानी होती है। लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेज राइट नो वी डोंट हैव दैट कैमल हेयर ब्रश। इसी तरह कैमल हेयर ब्रश से हम उठाते हैं, जिस तरह फीमेल्स का जो मेकअप का ब्रश होता है उसी तरह का वो फाइन पॉइंटेड उसके ऊपर वो लगी होती हैं, जिस तरह ये है ना ईयर टाइप। हम वहाँ से उठा के उसके ऊपर उसको डस्टिंग करवा देते हैं। तो इस तरह उसकी क्रॉस पोलिनेशन हो रही है। ऊपर पोलिन हो गए, अगेन हमने उसको कवर किया। पोलिनेशन जो है उसकी करवाने के बाद हमने इसको प्लांट और जो कॉब है उसको अगेन कवर कर दिया। कवर करने के बाद हमने इसको यहाँ से इस तरह पैक कर दिया और उसको वाइंड कर दिया। वाइंड करने के बाद हमने इसको, ये पूरी हमारी कॉब है, इसको हमने नीचे से बांध दिया, ठीक है ना। हमने इसको ऊपर यहाँ पे टैग लगा दिया। इस जगह पे हमने टैग लगाना है, इस जगह के ऊपर टैग का मैं आपको बाहर ज़रा बता देता हूँ इजीली। टैग हमने जो लगाने हैं वो इस जगह के ऊपर आके हमने टैग लगा देना है। उधर प्लांट के ऊपर आपको बताना ज़रा मुश्किल था। ये देखें, इस जगह पे आके हमने टैग लगाना है कि इस प्लांट को हमने, या इस जो फ्लावर है, ये वाला जो फ्लावर है, इसको हमने पोलिनेट किया, ठीक है ना। जो टैग है उसके ऊपर सबसे पहले आपने क्या लिखना है, डेट ऑफ एमेस्कुलेशन, कि जो एमेस्कुलेशन इसके अंदर किस तरह की है। क्योंकि हमारे पास एमेस्कुलेशन मेज़ के अंदर हम नहीं करवाते, तो जो हमने इसको कवर किया ना, तो वही हमारी डेट ऑफ एमेस्कुलेशन आ जाएगी।
मैस्कुलेशन होती है रिमूवल ऑफ मेल पार्ट। जिस तरह एंथर्स को अगर हम इस तरह से रिमूव करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये प्लांट है, इसका यहाँ से इसको तोड़ दें, रिमूव कर दें, तो ये क्या है, मैस्कुलेशन है। तो हमने क्या किया है, इस प्लांट के अंदर हमने फीमेल सेलेक्ट की है, उसका हम जो मेल है उसको भी कवर कर देते हैं, फीमेल को भी कवर कर देते हैं, लेकिन वो मेल हम यूज़ नहीं करते। दैट मेल इज़ ओनली यूटिलाइज्ड व्हेन वी हैव टू डू द सेल्फ पोलिनेशन। उसी प्लांट का मेल लेके अगर उसी को पोलिनेट करेंगे, दैट इज़ सेल्फ पोलिनेशन। अगर हम एक प्लांट से मेल और दूसरा प्लांट जो से फीमेल को पोलिनेट करेंगे तो दैट इज़ क्रॉस पोलिनेशन, ठीक है ना। ये मेज़ के अंदर सिंपल प्रोसीजर है। दोनों के अंदर ही हमें मेल जो है वो सेपरेट है, फीमेल सेपरेट है। इसी तरह डेट पाम के अंदर भी है, खजूर के अंदर, उसके अंदर लेकिन मेज़ के अंदर यह है कि एक ही फ्लावर प्लांट है, उसके ऊपर मेल फीमेल दोनों, लेकिन डेट पाम के ऊपर मेल प्लांट ही डिफरेंट है, फीमेल प्लांट ही डिफरेंट है, ठीक है ना। तो ये प्रोसीजर है। देन हम आ जाते हैं लास्ट लेबलिंग के ऊपर। लेबलिंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं, लेबलिंग के अंदर हम ये करते हैं कि सबसे पहले डेट ऑफ मैस्कुलेशन, जो हमने एक दिन पहले आके शाम को किए थे प्लांट को, डेट ऑफ मैस्कुलेशन। देन नेक्स्ट मॉर्निंग हम डेट ऑफ पोलिनेशन लिखते हैं, जब आके हमने पोलन को डस्टिंग करवाई थी उसके ऊपर। जब हमने इसके ऊपर डस्टिंग करवाई ना, तो वो डेट ऑफ पोलिनेशन आ गई। नीचे हम लिख देते हैं नेम ऑफ क्रॉस। पहले आगे नेम ऑफ क्रॉस, डेट ऑफ पोलिनेशन, सॉरी, नंबर 1 नेम ऑफ क्रॉस, नंबर 2 डेट ऑफ मैस्कुलेशन, नंबर 3 डेट ऑफ पोलिनेशन, नंबर 4 पे आपने अपने सिग्नेचर करने हैं। अब नेम ऑफ क्रॉस के अंदर क्या है कि फॉर एग्जांपल ये वैरायटी है, कोई एक वैरायटी नेम ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये ए वैरायटी है, दूसरी बी वैरायटी है, तो जो फीमेल है ना उसको आपने पहले लिखना है बी इंटू ए। वो बी है तो उसको आपने पहले लिखना है बी इंटू ए। ये भी मैं आपको इधर लिख के बता देता हूँ इसके ऊपर ना, बी आपके पास पहले आएगी जो फीमेल है इंटू ए। देन डेट ऑफ मैस्कुलेशन हमारे पास आती है 28 10 2020। देन हमारे पास जो हमने पोलिनेशन नेक्स्ट डे करवानी है 29 10 2020 और हमने अपने साइन करने हैं। ये हमारे पास इस तरह का, अगर आप देख सकें तो इस तरह का हमारे पास एक छोटा सा टैग बनेगा जो हमने यहाँ पे लगा देना है। ये तो बहुत बड़ा है ना, छोटा सा हमने टैग बना के इधर लगाना होता है। उसकी डायमेंशन मैं आप लोगों से शेयर कर दूँगा बाद में ना। तो ये वाला टैग अगर जूम करके आप दिखा सकें ना, तो 4 चीज़ें आपने लिखनी है। नेम ऑफ क्रॉस, क्रॉस के अंदर फीमेल का नाम पहले आ गया, डेट ऑफ मैस्कुलेशन, डेट ऑफ पोलिनेशन एंड नेम ऑफ क्रॉस। इसी तरह का एक टैग बनेगा सेल्फिंग के अंदर भी। तो ये मेज़ की सेल्फिंग क्रॉसिंग टेक्निक्स हैं कि आपने फीमेल को भी कवर किया, मेल को भी कवर किया, जो आपकी फीमेल है उसको भी आपने कवर किया और आपका जो मेल है उसको भी आपने कवर किया। सिंपल। उनकी अगर एक ही प्लांट के अंदर मेल से एंथर लेके उसी की फीमेल को पोलिनेट कर रहे हैं तो वो क्या है, सेल्फ पोलिनेशन। अगर ए प्लांट की क्रॉस हम बी से करवा रहे हैं, दैट इज़ क्रॉस पोलिनेशन, ठीक है ना। तो ये एक सिंपल सा प्रोसीजर है। अगर आप लोगों को इसके अंदर कोई भी कन्फ्यूजन है, किसी चीज़ की भी समझ नहीं आ रही, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 0333 82021498 820 2149 के ऊपर। आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप जो आपके बने हैं उसके ऊपर मुझे पूछ सकते हैं, या इस यूट्यूब के लिंक जो इसके नीचे कमेंट बॉक्स है वहाँ पे भी आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट्स के अंदर ना। तो दैट्स ऑल अबाउट द सेल्फिंग एंड क्रॉसिंग टेक्निक इन मेज़। थैंक यू सो मच।